शुभजीत फ्रॉम टीचर सर्कल। पिछले क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन के ऊपर डिस्कशन किए थे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स ऑन रिगार्डिंग प्रोपोर्शन एंड रेशियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, दिस इज ट्रिगोनोमेट्री एंड बेसिक व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। This is consist with three Greek letter in individual we can say. This is tri, this is stands for three. This is gonia is for angle and metry. This is a measurement. That means three angle measurement. In that particular branch of mathematics, we are dealing with three angle measurement along with sides. That means three sides and three angles. By using these two parameters, we will discuss this thing. In this particular branch, we will discuss about the ratio. Ratio of what? Ratio of sides and angles. Ratio of sides and angles with some relevant operator. Suppose I have a right angle triangle, right angle at angle B. This is 90 degree. That means right angle triangle ABC. This is right angled at 90 degree. Now we all know that a triangle is summation of all three angle is 180 degree. That means we can say these two angle, this angle A and angle B is 90 degree. Summation of angle A and angle C, sorry, this is 90 degree. Suppose this angle is theta. This angle will be 90 minus theta for sure. Okay. Now, one thing is important here. In this triangle, this is 90 degree. Now, we all know that basically angles, about angles, one is acute angle and another part is obtuse angle. What is acute angle? This acute angle lies between 0 degree to 90 degree, right? This acute angle is lie between 0 to 90 degree and this obtuse angle lies between 90 to 180 degree, right? Now, summation of these two angle is 90. And this, so this angle is theta, this angle is 90 minus theta. That means we can say these two are acute angle. This is very much simple. So this is a right angle triangle. First हम लोगों को जानना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होता है, कौन सा क्या होता है? दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर और वी कैन से हाइट, एंड दिस इज बेस. नाउ वन थिंग इज दैट स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होता है कि हाइपो को कैसे पहचाने, हाइट को कैसे पहचाने, बेस को कैसे पहचाने. एक बात हमेशा क्लियर रखना, जो 90 डिग्री होता है मतलब जो एंगल परपेंडिकुलर होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट उसका, दैट मीन्स 90 डिग्री का एग्जैक्टली ऑपोजिट जो साइड होगा हमेशा होगा हाइपो. एंड दैट मीन्स सपोज मैं ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जहाँ पे राइट एंगल एट एंगल ए, तब हाइपो कौन सा होगा? ये वाला होगा हाइपो. दैट मीन्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू 90 डिग्री. नाउ इफ वी आर considering this angle exactly opposite to that angle, that will be height. If we consider
this angle, then according to this angle height will be that side. That means height कौन सा होगा, जिस एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इट, मतलब उसका सामने जो होगा वो होगा हाइट. अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें तो ये साइड हो जाएगा हाइट. हाइपो तो सेम ही रहेगा. हाइपो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हाइपो डिपेंडेंट है परपेंडिकुलर के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर. 90 डिग्री का एग्जैक्ट ऑपोजिट में जो रहेगा वो होगा हाइपो. और थीटा मतलब जो हम लोगों का कंसीडरेशन में रहेगा, जो एंगल उसके ऑपोजिट में जो रहेगा, उसके ठीक सामने जो रहेगा वो होगा हाइट. तो ट्रिगोनोमेट्री में फर्स्ट हम लोग जो करेंगे वो होता है आइडेंटिकल रेशियो. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. बेसिकली रेशियो क्या क्या है? एक होता है साइन, सेकेंड वन इज कॉस, थर्ड वन इज tan, and after that this is cosec, sec and cot. Right? Now these are trigonometrical ratio. Ratio means we all know that ratio किसके बीच में होता है? रेशियो होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज के ऊपर. यहाँ पे होगा रेशियो साइड्स के ऊपर. दैट मीन्स जो हम लोगों का साइड्स है, हाइट, बेस और परपेंडिकुलर, उसके ऊपर होगा. कैसे होगा? सपोज these are the ratio and these ratio are valueless, meaningless without any angle. That means हम लोग ये रेशियो को इम्प्लीमेंट तभी कर सकते हैं किसी एक एंगल के ऊपर. मतलब without any angle, only sine, only cos, they are meaningless. So we are considering sine theta. That means this angle, this is theta angle, and we are calculating sine of this angle. We are calculating cos of this angle, we are calculating tan of this angle, cosec of this angle, sec and cot. सबके पीछे थीटा लगा दिया. दैट मीन्स साइन थीटा. और साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा रेशियो, हम पहले ही बोले कि ये 6 जो है रेशियोज, these are the ratio of side of a right angle triangle. Now right angle triangle consists with height, hypo and base. And one thing is important here, we all know the Pythagoras theory. According to Pythagoras, height square plus base square equals to hypo square. ये तो जानते ही हो सब लोग. इसका बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में. कैसे बोलते हैं? पहले साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हाइट बाई हाइपो. दैट मीन्स साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइट बाई हाइपो. हाइट बाई हाइपो. हाइट हम क्या बोले? वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस एंगल. तो इस एंगल के हिसाब से, कंसिडरिंग दिस एंगल, व्हाट इज आवर हाइट? जस्ट सामने जो है उसका, दिस इज ए बी, एंड हाइपो तो ए सी. ओके, दिस इज साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाइट बाई हाइपो. एंड व्हाट अबाउट कॉस थीटा? कॉस थीटा इज base by hypo. Base by hypo. This is, what is base here? Base is BC, hypo is AC. Base by hypo. Blue painter, blue marker. Now what about tan theta? Tan theta is
हाइट बाय बेस. Tan theta is height by base. What is height here? AB and BC. AB and BC. Now हमेशा बोलते हैं कि ये तीन जो है ना, ये तीन को अगर तुम सही से याद कर लिया तो बाकी तीन अपने आप याद हो जाएगा. कैसे देखते हैं. फर्स्ट चीज हम क्या बोले, साइन इक्वल्स टू हाइट बाई हाइपो and exactly reciprocal of sine is cosec theta. Exactly reciprocal of sine theta is cosec theta. That means sine theta is height by hypotenuse. So cosec theta will be hypo by height. Cosec theta will be hypo by height. That means AC by AB. Sec theta will be exactly reciprocal of cos theta. Exactly reciprocal of cos theta. This is sec theta. That means it will be hypo by base. That will be AC by BC. And what about cot theta? एकदम सही सोच रहे हो तुम कि exactly reciprocal of tan. That means base by height. Base by height. This is BC by AB. Now ये जो tan होता है ना, tan हम लोग क्या सीखे, हाइट बाई बेस. tan को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है. कैसे? इस tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा एज वेल. साइन थीटा बाई कॉस थीटा. कैसे देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या जाने, हाइट बाई हाइपो. साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाइट बाई हाइपो. एंड व्हाट अबाउट कॉस थीटा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपो. cos theta is equals to base by hypo. तो डिवाइडेड बाई cos theta है, तो अगर ऊपर चला जाएगा तो पलट जाएगा ना, मतलब हाइपो बाई बेस होगा. लिख सकते हैं ऐसे. तो हाइपो हाइपो कैंसिल होगा, क्या रहेगा बोलो, हाइट बाई बेस. सही है कि नहीं बताओ. मतलब tan थीटा इधर से भी हम लोग देख रहे थे क्या, हाइट बाई बेस, और यहाँ से भी प्रूव हुआ हाइट बाई बेस. सो हाइट tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा. अब ध्यान दो, हम पहले ही बोले कि कॉट थीटा जो है एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा. दैट मीन्स कॉट थीटा इज एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा. दैट मीन्स 1 बाई tan थीटा. तो कॉट थीटा अगर रेसिप्रोकल है tan थीटा का, तो कॉट थीटा को अगर हम साइन और कॉस में रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे करें, सिंपल, इसको पलट दो. दैट मीन्स दैट विल बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा. दैट विल बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा. सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस ऑल्सो. कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस बाई हाइपो, और साइन थीटा पलट जाएगा, हाइपो बाई हाइट हो जाएगा, हाइपो हाइपो कैंसिल, दिस विल बी बेस बाई हाइट. क्लियर? ओके. हम लोग 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के ऊपर जाने. नाउ एक चीज ध्यान दो, हम पहले बोले थे कि जो एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके हिसाब से हाइट कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा. नाउ वन थिंग, इन फर्स्ट केस वी आर कंसिडरिंग दिस एंगल. तो बहुत सारे के मन में एक डाउट होगा कि हम लोग इस एंगल के ऊपर नहीं ले सकते. डेफिनेटली ले सकते, क्यों नहीं ले सकते. लेकिन तब क्या होगा, हाइट और बेस चेंज हो जाएगा. चेंज हो जाएगा मतलब अगर इस एंगल के ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे तो इसके हिसाब से हाइट होगा BC एंड बेस होगा AB. सिर्फ इसको ही चेंज करना पड़ेगा. मतलब अगर इसका हम साइन लिए तो साइन का मतलब जो है वो सेम रहेगा, हाइट बाई हाइपो.
कॉस का मतलब जो है वो सेम रहेगा, बेस बाई हाइपो। सिर्फ क्या होगा यहाँ पे साइड चेंज हो जाएगा, मतलब साइन कॉस टैन का मतलब तो सेम ही रहेगा। साइन का मतलब जो है हाइट बाई हाइपो सेम रहेगा, कॉस का मतलब है बेस बाई हाइपो वो सेम रहेगा। सिर्फ क्या होगा, हाइट और बेस का पोजीशन चेंज हो जाएगा। मतलब इस एंगल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये होगा हाइट, ये होगा बेस। सिंपल। नाउ और तो हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जितना डिस्कशन किया हम लोग अभी तक। साइन थीटा इक्वल्स टू, दिस इज हाइट बाई हाइपो। चलो वो तो तुम बोल दिया, हम तो रेसिप्रोकल वाला लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या बोले, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। क्यों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1? पहले भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का एग्जैक्टली रेसिप्रोकल। मतलब साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है हाइट बाई हाइपो, साइन थीटा होता है हाइट बाई हाइपो, और कॉसेक थीटा तो क्या होगा, एग्जैक्टली उसका रेसिप्रोकल होगा, दिस इज हाइपो बाई हाइट होगा ना। तो बोथ कैंसिल होगा, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए हम लिखे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो एक और रेसिप्रोकल वाला रिलेशन किसके ऊपर था, कॉस थीटा के साथ था। कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1, एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं, तीनों स्क्वायर फॉर्मूला है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कैसे, तीनों स्क्वायर फॉर्मूला है, कौन कौन सा, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, this is equals to 1 cosec square theta minus cot square theta, this is also equals to 1, and sec square theta minus tan square theta, this is also equals to 1। अब चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं। बहुत सारे को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, कैसे करेंगे इसको प्रूफ। मतलब देखो, सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए बी एंड सी, दिस इज राइट एंगल एट 90 डिग्री, दिस इज थीटा, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ओके, नाउ फर्स्ट फॉर्मूला, व्हाट इज दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स साइन और कॉस के बीच में रिलेशन। अगर हम इस एंगल के ऊपर साइन थीटा लिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा इक्वल्स टू, वी नो दैट हाइट बाई हाइपो, दिस इज ए बी बाई ए सी, वी कैन राइट, ऑल राइट, ए बी बाई ए सी वी कैन राइट। सो साइन थीटा इक्वल्स टू दिस, sin square theta equal to what, ab square by ac square, this is sin square theta। and what about cos square theta, फर्स्ट तो cos theta निकाल लेते हैं। cos theta क्या है, बेस बाई हाइपो, बेस क्या है bc, हाइपो ac, so cos square theta will be bc square by ac square। Is it clear? Now suppose this is equation number 1, this is equation number 2, by adding these two, that means अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो क्या क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या है बताओ, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई
ए सी स्क्वेयर एंड कॉस स्क्वेयर थीटा क्या है, कॉस स्क्वेयर थीटा है बी सी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर. AC square will be in the LCM and this is AB square plus BC square. Now अब पाइथागोरस कॉन्सेप्ट के याद करो. पाइथागोरस कॉन्सेप्ट क्या था, हाइट स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर. दैट मीन्स in this diagram we can write height square is AB square plus BC square. This is equals to AC square. From Pythagoras formula we can say that. And look at here, this is here AB square plus BC square. So instead of AB square plus BC square we can put AC square here. That means AC square by AC square, that will be eliminated. This will comes as 1. So sin square theta plus cos square theta equals to 1 proved, right? Next cosec square का भी देख लेते हैं. So sin square theta plus cos square theta equals to 1 जैसे हम प्रूव किए वैसे ही हम लोग cosec square theta plus cos square theta को भी प्रूव कर सकते हैं, sec square theta minus tan square theta को भी प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करके. ठीक है, तो इन तीन इक्वेशन से हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं ना. कुछ ड्रॉ मतलब कुछ कोरोलरी जिसको बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको इधर भेज दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है ना. सिमिलरली सेक स्क्वायर के लिए भी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं. इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज अप टू दिस. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए प्लीज़.